to my lectures of class 9 physics. In the previous lecture, we have seen about the first law of motion. Here I am again in front of you to take the next topic, that is the second law of motion. Okay, now before going on the second law of motion, here we have to discuss about a term that is called as momentum, because this momentum will be using in this second law of motion. So what this momentum is? First of all, this momentum is represented by capital P. Okay, theoretically what this momentum is? This momentum is simply measures the quantity of motion contained in any body. मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर कितना मोशन उसने कंटेन कर रखा है, that is called as the momentum. That is what the theoretical definition of momentum is. Okay, now mathematically how we can express this momentum? Mathematically, this momentum is the product of mass and the velocity of the body. That is what mathematically we can represent this momentum. So this P is equals to mass into velocity. Okay, now here this P, it's a vector quantity. Now why it's a vector quantity? Because here we have velocity V. If this velocity is a vector quantity, then this momentum will be also a vector quantity. So this momentum is a vector quantity. Okay, now what will be the unit of this momentum? Here let us take P is equals to m into v. What is the unit of this mass? That is kilogram. What about velocity? Velocity is meter per second, so its unit will be kilogram meter per second. Okay, this is what momentum is. So now let us see what actually the second law of motion is. Okay, so what is the statement of second law of motion? The second law of motion states that whenever an external force is applied on a body, then that external force is directly proportional to the rate of change of momentum. So we can write that whatever the external force on an object is proportional to the rate of change of momentum. ओके मतलब यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे लगेगा तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस रेट से कोई मोमेंटम चेंज हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट इट एज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. मतलब जो भी मोमेंटम है वो कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट दिस चेंज इन मोमेंटम इज. चेंज इन मोमेंटम. ओके, नाउ दिस चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम minus initial momentum. Okay, now here this change in momentum, that is final momentum minus initial momentum, we will keep it in here, that is change in momentum. So we can write it as, that is final momentum minus initial momentum upon time. This is the rate of change of momentum. Now this rate of change of momentum is directly proportional to the external applied force. मतलब अगर हम force को मानते हैं F, then this F is directly proportional to this rate of change of momentum. That is final momentum is represented by P. Final momentum minus initial momentum divided by time. Okay, now this final momentum is, what is the formula for momentum? That is mass into velocity. So here final momentum mass into velocity. Now if we are considering the final momentum, then we have to consider the final velocity. So here the final momentum will be mass into final velocity, and the final velocity is represented by v. Okay, minus initial momentum. Initial momentum is again for the same object, mass will remain same, and what about the velocity? The velocity will be initial velocity. Why? Because we are considering the initial momentum, so it will be mu. It is mv and it is mu. Okay, divided by time t. हम क्या करेंगे यहाँ पर
ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, we will remove this proportional sign and at the place of proportional sign we will use a proportionality constant that is equals to k times mv minus mu by t. Okay, now practically this value of constant k is equals to 1. So here what we can write this f is equals to k is equals to 1 and we can take out this m and we can write v minus u by t. Okay, now we know that v is equals to u plus at, that is from the first equation of motion. तो यहां से हम लिख सकते हैं v minus u is equals to at, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं v minus u by t that is equals to a. मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, v minus u by t. मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर v minus u by t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a. मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, f is equals to m into a. मतलब यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, that is equals to mass into acceleration. अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, मतलब पहला लॉ क्या है, फोर्स को डिफाइन करता है. बट दिस सेकंड लॉ इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब वो जो फोर्स है आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप उस फोर्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. Case of first law of motion we have seen that it defines force, but in case of second law of motion it has given a measurement of force. मतलब यहाँ पर हम force को भी measure कर सकते हैं. Okay, now what we have defined force. What is the force? Force it is something in the form of push or pull. अब force की यूनिट क्या होती है, that is न्यूटन. अब हमने फोर्स को डिफाइन कर दिया बट वी हैव नॉट डिफाइंड द न्यूटन, मतलब वो जो 1 न्यूटन फोर्स है वो कितना कहलाएगा. अभी तक हमने डिफाइन क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी फोर्स की, है मैथमेटिकल डेफिनेशन. अब हमारे पास सेकंड लॉ से क्या आ गया, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट इज F is equals to m into a. हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, F is equals to mass into acceleration. अब यहाँ से हम 1 न्यूटन फोर्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. कैसे करेंगे, हमें क्या डिफाइन करना है कि फोर्स 1 न्यूटन होगा. ठीक है, अब यहाँ पर ये F 1 न्यूटन कब होगा, जब यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी है अगर हम दोनों को कितना ले लें, 1 यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. सो इफ दिस मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू 1 kg, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg और उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, इन दैट केस द फोर्स ऑन द बॉडी कैन बी सेड टू इक्वल्स टू 1 न्यूटन. ओके, अब यहाँ पर 1 न्यूटन को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg. तो फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, अगर वो फोर्स जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई किया जाए, उस बॉडी का मास कितना है 1 kg, और अगर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स. Okay, now here this force is equals to 1 Newton. So if I write this F is equals to 1 Newton and here this mass is equals to 1 kg and this acceleration is equals to 1 meter per second square, then I can write this 1 Newton is equals to 1 kilogram meter per second square. मतलब यहाँ पर 1 न्यूटन जो है उसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म में भी लिखा जा सकता है. Okay, so here 1 Newton is equals to 1 kilogram meter per second square. We have seen the second law of motion. Now we will see the examples of second law of motion. Okay, the best example of second law of motion is the fielder catching a ball. You might have observed that whenever a fielder is catching a ball, then he used to pull his hand backwards in order to catch the ball. Now why he is doing so? It is because of the force, and that is because of the second law of motion. Now let us understand it. We have this, according to the second law of motion, F is equals to ma. We can write this as V minus u by t, because a is equals to v minus u by t. मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, this m, this is force, it is equals to m, this is the change in its velocity, that is change in velocity upon time t, because v minus u, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, we'll get the change in velocity. Okay, now let's consider the two cases. In the first case, if when the ball arrives in the hands of the bowler, then what happens, that obviously there will be change in the velocity of the ball. मतलब अगर यहाँ पर इसकी velocity कुछ थी उस बॉल की, तो यहाँ पर आने के बाद उसकी जो velocity है वो क्या हो जाएगी, that will be equals to 0.
अगर यहाँ पर बॉल की कुछ वेलोसिटी है तो यहाँ पर आकर बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर केस सेकंड लेते हैं कि सपोज दैट बॉल इज हियर एंड द पर्सन्स हैंड इज हियर एंड दैट पर्सन विल मूव हिज हैंड्स बैकवर्ड्स। मतलब यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन फाइनली जब वो उसका हाथ रोकेगा तब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 ही होगी। बट डिफरेंस क्या आ रहा है कि उसका जो हैंड है इट विल मूव बैकवर्ड, इट विल टेक सम टाइम टू कैच दी बॉल। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और यहाँ पर क्या है, देयर इज सम टाइम t। इस केस में क्या हो रहा है, टाइम अपने पास क्या है, देयर इज नो टाइम। मतलब यहाँ पर वो जो चेंज इन मोमेंटम है या जो वेलोसिटी चेंज करने में है कोई भी टाइम यहाँ पर नहीं लग रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर अगर t की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फोर्स है दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। अगर ये टाइम की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, बिकॉज दे बोथ हैव इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या है, कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मीन्स दैट बॉल मे हर्ट दी फील्डर। बट अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हियर इन द सेकंड केस, दिस इज फॉर दी फर्स्ट केस, इन द सेकंड केस अगेन वी हैव f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम t। मतलब हैंड को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो टाइम कवर किया है दैट ही हैज टेकन सम मोर टाइम t। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t। तो जैसे यहाँ पर t की वैल्यू बढ़ाएंगे जो f की वैल्यू क्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स द फील्डर वोंट हर्ट हिज हैंड्स, मतलब वहां पर हाथों पर चोट नहीं लगी। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। यू माइट हैव सीन अनदर एग्जांपल दैट इन केस ऑफ अ लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में हमेशा क्या होता है, जो भी रनर जंप करता है ये ऑलवेज यूज टू लैंड ऑन अ हीप ऑफ सैंड। मतलब वहां पर रेत बिछी हुई होती है जिसके ऊपर वो जंप करता है। नाउ व्हाट इज द रीजन टू हैव टू स्प्रेड द सैंड ऑन दी सरफेस, क्यों, बिकॉज वहां पर भी यही रीजन है कि जैसे ही वो पर्सन उसके ऊपर लैंड करेगा यहाँ पर जो टाइम t है दैट टाइम विल इंक्रीज, और जैसे ही वहां पर टाइम बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इन दैट वे द पर्सन वोंट गेट हर्ट। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा एग्जांपल। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन गेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, इन द सेकंड लॉ वी हैव f इज इक्वल्स टू m v माइनस u बाय t। मतलब हम यहां से कर सकते हैं f इंटू t इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u। ओके, नाउ व्हाट इज इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब इन फर्स्ट लॉ we can say this force F is equals to 0। फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फोर्स 0 है मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम m v माइनस u। मतलब यहाँ पर m भी इसके नीचे ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, v is equals to u। मतलब अगर जब भी फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, देन इट विल रिमेन इन मोशन। मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी, अंटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ u इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पर अगर u इक्वल टू 0 देन v ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ना जाए। मतलब उसके ऊपर क्या है, फोर्स 0 है। अगर फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, if an object is in motion it remains in motion until and unless an external force is applied on it. So in this way we can also formulate the first law of motion by using the second law of motion. Thank you.